Good morning, beta. Hope you all are fine. Yesterday we have discussed first theorem of the chapter lines and angle. That is, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. Now let's discuss with the second theorem. That is, the sum of the angles. The sum of the angles of a triangle is 180. The sum of the angles of a triangle is 180. What you will do for this? You will draw a triangle. You will draw a triangle and the name of the triangle is ABC. We want to show that 1 plus 2 plus 3 gives you 180. That's what we want to prove. So, firstly you will write given. Given is triangle ABC is given. Only you have given a triangle. To prove, हमने क्या prove करना है? Angle 1 plus 2 plus 3 का जो sum है that is 180. Okay. So for this what you will do? You will do the construction. You will draw a line EF that passes through A, and this line is parallel to BC. So we will write here construction. Draw a line EF passing through A, and parallel to BC. Okay. Now, if the two lines are parallel, you can use the concept of the parallel line that corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, or you can say sum of the co-interior angles must be 180 degrees. So here we will use the concept of alternate angle. This is 1, 2, 3. You will give here name 4 and this is your angle 5. Actually outside the line this angle 4 is constructing, that is alternate interior angle to 2. 5 is alternate angle of 3. So that's why I have given the name 4 and 5. So let's start with the proof. Only two theorems are there in this chapter. First we have discussed yesterday and this is your second one. Okay. Now in the proof, as you can see that this is a straight line. EF is a straight line. So can we say that 4 plus 1 plus 5 is equal to 180 linear pair? Any doubt in this? Any doubt, beta? Now, angle 4. Yes, Havish. एक सेकेंड रुको जरा, मुझे लगता है वो एक सेकेंड रुको. 4 plus 1 plus 5 is equal to 180. Now, angle 1 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 3. Alternate interior angles. Okay, is it clear? So if I write angle 4 as angle 2 and angle 5 as angle 3, so we will reach at this result 1 plus 2 plus 3 is 180. So
Let's put these two values. Give this equation number. This is your equation number 1. This part is your number 2. Okay. Put 2 in 1. So this will gives you 2 plus 1 plus 3 is equal to 180. Hence proved. Wait. Is it okay? Any doubt? Any doubt, beta? So the sum of three angles of a triangle is 180. So this we have proved with the help of the construction. Whenever the proof type question is there or theorem is there, it's compulsory to write given to prove. Yes, Havish? 2 plus 1 plus 3 is equal to 180. 4 की जगह 2 लिख दिया, 5 की जगह 3. तो एंगल 1 2 3 का सम 180 आ गया. Okay. Now one question is left from the third exercise. So we will complete that question first, and after that we will finish this chapter. So that's the last question of our exercise 6.3. So the last question is, you have given the side QR of the triangle PQR. Question number 6. This is your triangle PQR. The side QR of the triangle PQR is produced to S. आपको कहता है ये जो QR base है, we have produced this to S. Okay. Now, before constructing this figure completely, I want to tell you one thing. Whenever we produce the side of the triangle, always exterior angle is formed. So here, I'm writing the proof part. I'm writing the first line. Angle PRS is equal to, this exterior angle is equal to sum of the interior opposite angles. So can I write this as, is it okay? So this is your exterior angle property. But you don't write down. Just first listen to me. I will give you time to note down the things. Okay. So here you will add one more thing in the proof. QR is produced to S. This implies this angle is equal to this. That is your exterior angle property. Okay. Any doubt? Now, let's come to the question again. You have given the bisector of angle PQR. आपके पास यहाँ पे एक bisector है जो इस एंगल को bisect कर रहा है. Bisect का मीनिंग है both the parts will be equal. और सेम मैनर में आपको कहता है PRS का भी एक bisector है जो दोनों एक दूसरे को मीट कर. Is it okay? The bisector of PQR and bisector of PRS are meeting each other at the point P. This is given. Now again, earlier we have talked about the triangle PQR. Now another triangle has been formed, that is QTR. And in case of QTR, you have exterior angle, that is TRS. Is it so? So I am giving it number 1. This is your number 2.
So in triangle QTR, TRS is exterior angle, that is number 2, that is angle number 2. नाउ वी, जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल के लिए जो भी किया है, अब हम सेकंड ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं. आपके पास ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल T. लिख सकते हैं ये. पहले मैंने लिखा कि PRS जो एक्सटीरियर एंगल था ये बड़े वाला, ये इक्वल है P और Q के सम के. ठीक है. फिर मैंने कहा कि एक और ट्रायंगल बन रहा है, उसका नेम है QTR, उसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 2. एक्सटीरियर एंगल इज अगेन इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दैट इज 1 प्लस T. Is it clear? Now, as you can see that 1 is the half of angle Q and P you will take completely. Actually दो एंगल डिवाइड हो रहे हैं, एक तो Q डिवाइड हो रहा है, एक एंगल R डिवाइड हो रहा है. जब R डिवाइड हो रहा है तो 2 बन रहा है, जब Q डिवाइड हो रहा है तो 1 बन रहा है. तो सेम वे में हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल QTR. ठीक है. यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर रही हूँ, मैं दोनों साइड पे हाफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. हाफ ऑफ PRS is equal to half of angle P plus half of angle Q. Half of angle P will remain same क्योंकि वो बाइसेक्ट नहीं हो रहा, तो वो वैसे के वैसे आएगा सेम. तो आप इसको half of angle P सेम लिखोगे. एंगल Q का हाफ क्या है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा एंगल 1. तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया कि हाफ ऑफ दिस एंगल. अच्छा, इसका नेम आप बता सकते हो? दोबारा लिखना हाफ ऑफ PRS. PRS का हाफ क्या है? इस पूरे एंगल का हाफ क्या है? एंगल 2. तो इसको लिख दो 2, इसको लिख दो सेम. इसका हाफ क्या है? एंगल 2. तो ये आपकी कंडीशन नंबर 1 आ गई. अब हमने जो पहले लिखा था, आई एम राइटिंग दिस दैट अगेन. इन ट्रायंगल QTR, angle 2 is equal to angle 1 plus angle T, that is again exterior angle property. Is it okay? अब देखो, हमने दोनों ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी. फर्स्ट में भी लगा दी, उसका हाफ कर दिया. सेकंड ट्रायंगल में ऑलरेडी हाफ बन रहे थे तो हाफ ही लिख दिया. अब देखो, अब आपको चाहिए क्या? अब हम गिवन लिख रहे हैं, जो हमने पहले नहीं लिखा था. जो जो क्वेश्चन में है सारा कुछ लिख देना है आपने यहाँ पर. तो यहाँ पर आपके पास आएगा QR of triangle PQR is produced to S. Bisector of triangle angle PQR and TRS meet at T. ये भी गिवन है. टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल QTR जो है वो हाफ है QPR. ये शो करना है. एक बार फिर से देखो, हमने शो क्या करना है कि QTR मतलब ये वाला एंगल T इसके हाफ है, ये शो करना है. एंगल T जो है वो इस एंगल का हाफ है, ये शो करना है अपने यहाँ पर. तो हमने क्या किया, बड़े ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, उसका हाफ कर दिया. फिर छोटे वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी. नाउ वी विल कंबाइन दीज रिजल्ट. एंगल 2 की वैल्यू ये है, एंगल 2 की वैल्यू ये है. इसको दे दो नंबर 2 इक्वेशन. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो देयर राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल P प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एंगल T. मैंने कुछ भी नहीं किया, जो था सेम एज इट इज कॉपी कर दिया. यहाँ पे 2 और 2 सेम है, लीव दिस साइड, राइट हैंड साइड. नाउ in both the side, in both these side, what you will do? Yes, hurry up, tell me, have we reached at the answer? ये एंगल 1,
एंगल क्यू का हाफ 1 है, तो यहाँ क्यू का हाफ 1 था। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 एंड एंगल 1 बोथ आर सेम, both will cancel out, so our answer is half of angle P is equal to angle T। ये देख लो यहाँ पे T है, यहाँ P है, तो एंगल T is equal to एंगल T is equal to half of angle P। यही चाहिए था हमें। एंगल T is equal to half of angle P। देखो इधर, मैं सारा ये बता नहीं रही, मैं आपको फिगर में समझा देती हूँ। अगर आपको फिगर क्लियर है तो बाकी सब कुछ भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिगर दोबारा बनाती हूँ। यहाँ आपको कहते हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दिया हुआ था पी क्यू आर, कहते हैं इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, एस बन गया। अब जब किसी ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो हमने कह दिया कि पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है वो पी और क्यू के सम के इक्वल है बाय एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये लाइन क्लियर है, उसके बाद कहता है ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। जब बाइसेक्ट हो रहा है तो इसको नेम दे दिया 1, ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसको नेम दे दिया थोड़ा सा, इसको दे दिया 2। तो जब एंगल P बाई, हमने क्या करा, ये लाइन आ गई, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर हाफ में डिवाइड करता है, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया। जब आप एंगल Q को हाफ करोगे तो क्या आएगा 1, तो मैंने Q का हाफ कर दिया 1। P का हाफ हो नहीं सकता क्योंकि वो बाइसेक्ट नहीं हो रहा, तो सेम लिख दिया। एंगल पी आर एस, ये पूरा, ये एंगल पी आर एस पूरा था, जब आप इस पूरे एंगल का हाफ करोगे तो एंगल 2 आ जाएगा, ये 2 है, तो इसको मैंने लिख दिया 2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ से। अब आपको एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नेम है क्यू टी आर। ये जो क्यू टी आर फॉर्म हो रहा है ना बच्चे, ये देखो इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल 2 है, तो एक्सटीरियर एंगल 2, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल का सम, दैट इज 1 प्लस टी, तो मैंने ये लिख दिया एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल टू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी, ठीक है। अब आपके पास दो कंडीशन आ गई, एक फर्स्ट ट्रायंगल से ये वाली, सेकंड ट्रायंगल से ये वाली, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, 1 और 1 सेम है, कैंसिल हो गए। यू हैव रीच्ड एट द आंसर, एंगल टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी। या इज इट ओके? Now, with this, we have finished our chapter number 6, that is lines and angle. So let's now, we have time, we can start with the next chapter, that is polynomial, chapter number 2. Chapter number 2, polynomial. Now, in the junior classes, you must have listened about the term algebraic expression. Yes, Harmeet? 2 4 6 कर लेना, even 2 4 6. Now listen, in the previous class you have listened about the term algebraic expression. If I write 2xy, it is a combination of x and y, so it is your algebraic expression.
Algebraic expression is the combination of the terms that involve number, variables and that are combined to each other with the different operation. ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों टर्म प्लस हो रही है. अगर आप इसके नीचे m लिख दो तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड. तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रहा है, ये प्लस हो रहा है और साथ में -7 में लिख दो ये माइनस. तो जब भी किसी टर्म्स का कॉम्बिनेशन आता है, चाहे वो नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, that term is known as algebraic expression. But if instead of taking different variables, if I take one variable and if I write 2x plus 7, that is in single variable, so this is called your polynomial. If I write 4x square plus 7x minus 8, so this is your quadratic polynomial. क्योंकि 2 पावर है तो quadratic है, 1 पावर है तो linear है, 3 पावर है, ये 3 एक ही वेरिएबल में है ना, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल जो है एक तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट विल बी ओनली इन वन वेरिएबल. Okay, and one most important thing is that all the x, all the variables will appear in the numerator only. If I write 1 by x, x is in the denominator, then the value of this is x raised to power minus 1. So x is having negative power, so that means this is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Because according to the definition of polynomial, x should have power positive. Got it? रियल नंबर नहीं होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, बट इट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है. कोफिशिएंट जो है, आई एम रिपीटिंग ईच एंड एवरीथिंग. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म कैन बी रियल नंबर. रियल का मतलब है वो रूट में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव हो सकती है, सब उसके कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं. बट एक्स की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए. डिनोमिनेटर का मतलब है व्हेन यू टेक इट टू द न्यूमिनेटर इट विल बिकम नेगेटिव. सो पावर शुड नॉट बी नेगेटिव एट ऑल. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. मैंने आपको कहा कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने रीड किया हुआ है इन द 7th एंड इन द 8th क्लास. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल एज वेल एज द नंबर. जब आपके पास किसी क्वेश्चन में वेरिएबल्स या नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है बेटा, ये वाले सारे, ये सारे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जूनियर क्लास में पढ़ के आए हो. देखिए हम चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर वन वेरिएबल में होगा तो आप उसको पॉलिनोमियल कहोगे. ये एक्सप्रेशन तो है, आप ये नहीं कह सकते कि एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अब पर्टिकुलर नेम हो गया इसका पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज इन ओनली इन वन वेरिएबल. एंड मैं आपको फिर से एक और बात बता दूं, देखो इधर, जैसे मैं कोई बड़ी सी, एक मिनट मेरे को टर्म लिखने दो, ये मैंने लिख दिया. मैंने आपको कहा कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर एक तो वाई की या एक्स की धीरे धीरे रिड्यूस होती है. जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 पावर है, यहाँ है ही नहीं, तो मतलब एक्स की पावर 0 है. यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 0 है, यहाँ एक्स क्यूब है, बाकी कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पावर, ओ सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, मैंने अलग अलग लिखा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं था. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि सिंगल वेरिएबल. एक्स के जो कोफिशिएंट है या वाई के जो कोफिशिएंट है, मतलब जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, वो रियल नंबर होंगे. ये क्या होंगे, रियल नंबर. रियल नंबर का मतलब इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इररेशनल. तो इररेशनल और रैशनल में आपको पता ही है, फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है, नेगेटिव भी आता है, सब कुछ आता है. बट पावर ऑफ वाई शुड नॉट बी नेगेटिव. जैसे मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देती हूँ. ये देखो, एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, नहीं है. डिनोमिनेटर में आ रहा है, नहीं है. अगर यही ऊपर होता ऐसे तो ये पॉलिनोमियल हो जाता. और देखो ये भी नहीं है क्योंकि एक्स की पावर नेगेटिव है. ये नहीं है, क्यों? क्योंकि वाई डिनोमिनेटर में है. इज इट ओके? एनी डाउट बेटा?
Write down the definition. A polynomial is an algebraic expression. A polynomial is an algebraic expression in which a polynomial is an algebraic expression in which no variable in which no variable appear in denominator in which no variable appear in denominator और अंडर रेडिकल साइन. रेडिकल साइन मतलब रूट वगैरह में नहीं होगा. A polynomial is an algebraic expression in which no variable appear in denominator, no variable appear in denominator or under radical sign. Radical, radical, radical sign. And all variables, आगे कंटिन्यू है, and all variables should have positive power. All variables should have positive power. अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं. ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में रिकॉग्नाइज के लिए आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. अभी बहुत ज्यादा काम है इस टॉपिक में, बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो आपने करनी है. देखो इधर, पावर नेगेटिव है, यहाँ x की पावर 1/2 है. रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे x की पावर 1/3 है, फ्रैक्शन में है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इसमें x की पावर पॉजिटिव है, y की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन ये रियल नंबर चलेगा. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है एक्स वाई में. है तो एक्सप्रेशन ही, क्योंकि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. सो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which all the powers of x and y are positive. So yes, it is a polynomial in two variable, and both of these are not polynomials. Is it okay? Can you tell me the constant term in this? Constant term in this, -1/3. इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 5. इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट √2. एंड दिस इज नॉट द कोफिशिएंट, इट इज अ कांस्टेंट टर्म. इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3. कितनी टर्म्स है? 1 2 3. और अगर आपने हर टर्म के फैक्टर बताने हो तो आप ऐसे करेंगे, सारे मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे इसके फैक्टर बताने हो, √2x और y, एंड दिस इज कांस्टेंट, सो इट इज -1 एंड 1/3. तो ये इसकी क्या आ गई? टर्म्स. ये पॉलिनोमियल कितनी टर्म से बना है? 1 2 3 से. इसके सबके फैक्टर्स कर दिए आपने. फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म आई हैव रिटन. एंड -1/3 इज नॉट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. कोफिशिएंट किसका होता है? वेरिएबल का. कोफिशिएंट किसका होता है? वेरिएबल का. तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए ये कोफिशिएंट नहीं है. क्या है? कांस्टेंट. इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5, इसका √2. इज इट ओके? एनी डाउट? Is this a polynomial? Is this a polynomial? No, because y is in the denominator. So every coefficient should remain in the numerator only. It should not occur in the denominator. So I am writing the general form of the polynomial. आपने polynomial की definition लिखी है, उसमें एक और चीज add on कर लेना.
ये क्या लिखा है मैंने पता है, जनरल फॉर्म लिखी है पॉलिनोमियल की। an कोफिशिएंट है, an माइनस वन, a2, a1, a0 सारे कोफिशिएंट है। ये कांस्टेंट टर्म है लास्ट। x की पावर n है, मतलब पहले क्यूब है, फिर एक कम होगी 2, फिर 1, ऐसे करके रिड्यूस हो रही है। तो अब मुझे नहीं पता n कितना है, 50 है, 100 है, 20 है, 10 है, 5 है, तो हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया n, n minus 1, n minus 2 and so on, 2 1 0।